बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो ग्रेन टेस्ट हुआ है उनके बायोलॉजी एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट नंबर एमसीक्यू दिया हुआ है, व्हाट वायरस इज रिस्पांसिबल फॉर कॉजिंग एड्स? दैट इज ड्यू टू द HIV, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ऑप्शन बी इज करेक्ट। सेकेंड दिया हुआ है, HIV कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लूइड्स? वो ब्लड के जरिए से ट्रांसमिट होता है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। Third, one of the major indicators are that HIV has progressed to AIDS. Major indicator that HIV has progressed to AIDS. HIV एंटर हुआ है और AIDS काज होने वाला है, तो अपॉर्चुनिस्टिक डिजीज से भी हमें पता चल जाता है, क्योंकि वो ऐसी इन्फेक्शन वगैरह जिससे बॉडी रिकवर नहीं हो रही, तो उससे भी हमें अंदाजा हो जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Fourth, which of the following is the typical symptoms in the late stage of AIDS? Severe weight loss, sudden weight loss हो जाता है, so option B is correct. Fifth, which of the following virus infects only bacteria? Bacteriophage, so option C is correct. Sixth, HIV is classified as HIV को retrovirus कहते हैं, so option B is correct. 7. How many GDP molecules are directly produced per turns of the Krebs cycle from one acetyl coenzyme A? So option B, एक GDP बनता है, option B is correct. 8. How many NADH molecules are produced per acetyl coenzyme A oxidized in the Krebs cycle? So 3 NADH2 बनते हैं, so option C is correct. 9. What is the total ATP yield including from NADH and FADH through oxidative phosphorylation from one acetyl group? So 12 ATP बनती है, 3 NADH2 से 9 ATP और एक FADH2 से 2 ATP और एक सबस्ट्रेट लेवल। MCQ statement आती है, which of the following correctly meets the products formed for one acetyl coenzyme in the Krebs cycle? 3 NADH है, एक FADH है और एक GDP है, so option B is correct. 11. Which of the following is the primary function of carbohydrate in the body? So they are short-term energy source है, so option D is correct. 12. Which biological molecule is primarily responsible for catalyzing chemical reaction in the body? So protein, because enzymes are protein in nature. So option B is correct. 13. Lipids are important in biological system because they are actually as the insulations in long-term energy source. B है, so option C is correct. 14. Which of the following molecules store and transmit genetic information? So nucleic acid, option C is correct. 15. The main function of RNA is to help in protein synthesis. Option C is correct. 16. Which molecule is primarily produced by the mitochondria? So ATP, so option B is correct. 17 पे आते हैं, which organelle work closely with the Golgi apparatus to transport protein? Endoplasmic reticulum का काम है, so option B is correct. 18. The endoplasmic reticulum is involved in protein and lipid synthesis, क्योंकि CR lipids और RER protein. 19 पे आते हैं, what is the main function of the nucleic acid? Controlling selectivity and storing genetic material, so option C is correct. 20. The small structure inside the nucleus that makes ribosome is called nucleolus, so option C is correct. 21. Which of the following is the neurotransmitter? Acetylcholine neurotransmitter है, so option C is correct. 22. The part of the brain that regulates hunger and thirst is hypothalamus, option C is correct. 23. The outer protective covering of the brain is called, so meninges, चूंकि brain के नजदीक ये होती है, so option C is correct. 24. What is the basic unit of the nervous system? Neuron, so option B is correct. 25. Which part of the neuron receives signal from other neuron? Dendrites का काम है, so option C is correct. 26. What is the primary function of enzymes? So they to speed up of chemical reactions, so option B is correct. 27. Which of the following is not true about the enzymes? They are consumed in a reaction. They are used but they are not consumed, so option B is correct. 28. The site of the enzyme where substrate bind is called, that's called as active sites, so option A is correct. 29. Which type of enzyme break down protein? So they are break down by protease, option C is correct. 30. An enzyme that act on one specific substrate is called specific enzyme, so option B is correct. 31. What is the main mechanism of evolution according to Darwin? So option B, natural selections. 32. The theory of evolution explains the process by which species originate and change over time. So option B is correct. 33. Which of the following provide the best evidence for evolution? Fossils records हमें पता चल जाता है. So option A is correct. 34. The idea that organisms with a favorable trait survive and reproduce more successfully is called survival of the fittest. So option A is correct. 35. Which scientist proposed that the theory of inheritance of acquired correct gene? Peptis de Lamarck ने propose की थी. So option B is correct. 36.
In a human, fertilization occur in the fallopian tubes. Option D is correct. 37. Which hormone is primarily responsible for ovulation? Luteinizing hormone का काम है. So option C is correct. 38. What is the function of placenta during pregnancy? They transfer nutrient oxygen to the fetus. So option B is correct. 39. What is the correct sequence of stages in the human reproduction? So gamete formation, fertilization, zygote, embryo, and fetus. Option A is correct. 40. Which of these is a function of the umbilical cord? Transport nutrient oxygen from mother to the fetus. So option C is correct. 41. Which protein form the thick filaments in the sarcomere? Myosin का काम है. 42. What is the role of Z lines in the muscle sarcomere? They separate sarcomeres. Partition है. 43. The sarcolemma is a plasma membrane of the muscles. Cell has. Option B is correct. 44. What is the function of sarcoplasmic reticulum in skeletal muscle? They store and release calcium ions. Option C is correct. 45. The smallest contractile unit of the muscle fiber is sarcomere has. Option B is correct. 46. Which of the following best defines gene linkage? So option C. The tendency of the gene located close together on the same chromosome to be inherited together. Next आते हैं MCQ number है 47. Which of the following is sex-linked disorder? Hemophilia. So option B is correct. 48. The chromosomal pattern for the normal human is XY. So option B is correct. Normal in the male के लिए. 49. In the bird, the 6 chromosomes are represented as ZZ in male and ZW in the female. So option C is correct. 50. Mendel conducted his experiment on which plant? Pea plant. So option C is correct. 51. Which of the following is the main function of the circulatory system? Transport of the nutrients and oxygen. So option C is correct. 52. What type of blood do pulmonary arteries carry? So deoxygenated blood. So option B is correct. 53. Which chamber of the heart receive oxygenated blood from the lungs? Left atrium receive करता है oxygenated blood from the lungs. 54. What is the largest artery in the human body? Aorta है. 50. So option C is correct. 55. Which side of the heart pumps oxygenated blood to the body? So left sides का काम है. Left ventricle. So option A is correct. 56. Which of the following is not the part of human immune system? Livers का part नहीं है. So option C is correct. 57. What type of immunity is developed after recovering from disease like chicken pox? So active natural immunity. So option B is correct. 58. Which of the following cells are primarily responsible for the production antibodies? So B cell. Option B is correct. So 59. What is the role of the thymus in the immune system? Mature T lymphocytes. Option C is correct. 60. HIV primarily attacks which cells of the human immune system? So option C helper T cell partake करता है. 61. Which of the following is the primary muscles involved in the breathing? Diaphragm का काम है. Option B is correct. 62. What is the main function of the alveoli in the lungs? Exchange gases between air and the blood. So option C is correct. 63. Which gas is primarily exhaled during respiration? Carbon dioxide. Option C is correct. Where does external respiration take place? So between alveoli in the blood. So option C is correct. औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ग्रेन टेस्ट का बायोलॉजी पोर्शन का क्वेश्चन नंबर 65 से हम स्टार्ट लेंगे. इन क्वेश्चंस में कुछ ना कुछ ट्रिक्स इसलिए यूज़ किए गए हैं ताकि आपको इसी डिस्कशन में पता चल जाए कि आप कहाँ पे कोई गलती कर सकते हैं. तो यू शुड नॉट रिपीट इट इन योर कमिंग मेजर जो कमिंग टेस्ट है उसमें. क्वेश्चन 65 है एमंग हाइड्रोलिसिस एंड कंडेंसेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम. हाइड्रोलिसिस और कंडेंसेशन में कौन सा प्रोसेस जो है वो एंजाइम की कंट्रोल में होता है? तो हाइड्रोलिसिस भी एंजाइम कंट्रोल मैकेनिज्म है और कंडेंसेशन दोनों जो है दीज आर कंट्रोल्ड बाय एंजाइमेटिक एक्शन. असल में जो प्रोसेसेस है दीज आर कंप्लीट मैकेनिज्म. जिस तरह हम डाइपेप्टाइड के बारे में कहते हैं कि अगर इसकी ब्रेकडाउन होती है तो उधर वाटर की मालिक्यूल्स ऐड होने का मतलब ये कि एक साइड पे हाइड्रोजन दे रहा है और दूसरी साइड पे हाइड्रोक्सल. या अगर हम कहते हैं कि डाइपेप्टाइड की ब्रेकडाउन हो रही है तो इसमें वाटर फिर जब बनेगा तो एक साइड से हाइड्रोजन आएगा और दूसरी साइड से हाइड्रोक्सल ग्रुप. तो इसके लिए चूँकि ये कंप्लीट मैकेनिज्म है इसलिए इसका आंसर बोथ ऑफ देम है. क्वेश्चन 66 है द एड्स वायरस हिज जीनोम मेड अप ऑफ. एड्स वायरस का जो जीनोम है, जीनोम का मतलब जेनेटिक मटेरियल है, और यहाँ पे आपके साथ जो ऑप्शंस दिए गए हैं आरएनए, डीएनए, प्रोटीन और लिपिड्स. तो द करेक्ट आंसर इज आरएनए. 2 स्ट्रैंड्स होते हैं आरएनए की एंड दैट इज द जीनोम ऑफ एचआईवी या एड्स वायरस.
क्वेश्चन 67 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब यहाँ पे आप देखिए तो ऑप्शन ए में राइबोसोम को एज अ डिस्ट्रक्टर रखा गया है, क्योंकि राइबोसोम तो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है, लेकिन इसके साथ साथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे आल्सो हैव द सेम रोल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बोथ है। तो यहाँ पे अगर जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे आंसर ए इसका करेक्ट हो तो you should first check B, C and D all options. Question 68 है which of the following can be found in DNA। अगेन यहाँ पे आप देखें तो डिस्ट्रक्टर क्या है कि DNA के साथ हम जब हम कंपैरिजन करते हैं DNA और RNA में, तो इसमें हम पढ़ते हैं कि DNA में थाइमीन होता है और RNA में थाइमीन की जगह यूरासिल होता है। यहाँ पे थाइमीन को ऑप्शन ए में एज अ डिस्ट्रक्टर एज अ ट्रिक रखा गया है ताकि आपको ऑप्शन ए करेक्ट नजर आ जाए, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि ऑप्शन सी भी करेक्ट है, क्योंकि डीएनए में थाइमीन तो होता है लेकिन इसके साथ साथ एडेनिन इज आल्सो पार्ट ऑफ द डीएनए। तो यहाँ पे बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 69 है एडेनोसिन इज अ मॉलिक्यूल मेड ऑफ। यहाँ पे आप देखें तो ये एडेनोसिन और एडेनिन ये अलग अलग चीजें हैं। एडेनिन खुद नाइट्रोजनस बेस है और एडेनोसिन जो है ये न्यूक्लियोसाइड है दैट इज मेड ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। यहाँ पे हमारे साथ करेक्ट आंसर बी आएगा, क्योंकि इसमें एडेनिन नाइट्रोजनस बेस है और शुगर पेंटोज शुगर होगा तो कुड बी राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर। क्वेश्चन 70 है पार्ट ऑफ एंजाइम टू विच सबस्ट्रेट कैन बाइंड इज। अच्छा, यहाँ पे बाइंडिंग साइट तो इसमें जो दिए गए हैं वो दो है, एक एलोस्टेरिक साइट है और एक एक्टिव साइट है। एलोस्टेरिक साइट जो है वो नॉर्मली किस चीज़ के लिए होता है, वो इनहिबिटर के लिए होता है, फीडबैक इनहिबिशन में प्रोडक्ट के लिए होता है। और यहाँ पे चूंकि बाइंडिंग साइट दिया गया है सबस्ट्रेट के लिए तो दैट इज एक्टिव साइट एंड सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 71 है द NADH प्रोड्यूस्ड इन साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल ड्यूरिंग रिस्पिरेशन कैन यील्ड। अच्छा, साइटोप्लाज्म में जो NADH बनता है इसका मतलब ये इनडायरेक्टली ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस के बारे में है। तो ग्लाइकोलिसिस जो है दैट अकर इन साइटोप्लाज्म, और इसका जो NADH बनता है उसका मेन जो प्रोडक्ट है वो 2 ATPs है। इन केस ऑफ NADH ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया लाइक लिंक्ड रिएक्शन क्रेब्स साइकिल वो आपको 3 ATPs देगा। क्वेश्चन नंबर 72 है द करंट हेलिकल मॉडल ऑफ DNA वाज प्रपोज्ड बाय। तो आप अगर सिलेबस देखें तो बिल्कुल सिंपल प्लेन क्वेश्चन दिया गया है, वाटसन एंड क्रिक मॉडल है, वाटसन एंड क्रिक ने इसको प्रपोज किया है, बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 73 है पामेटिक एसिड इज अ फैटी एसिड हैज द एबिलिटी टू यील्ड। अच्छा, यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में जो पामेटिक एसिड है सिलेबस में आप देखिए तो प्रोटीन, फैट्स और ग्लूकोज ये 3 चीजें दिए गए हैं दैट हैज रोल इन ATP सिंथेसिस रेस्पिरेशन प्रोसेस में। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये कि पामेटिक एसिड इसमें एग्जाम्पल दिया गया है और वो 129 ATPs हमें देते हैं थ्रू बीट ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ये लिपिड के साथ रिलेवेंट पॉइंट या फैट्स के साथ। क्वेश्चन 74 है टारगेट सेल फॉर HIV इज। अच्छा, CD4 सेल जो है हमारे साथ वो टारगेट सेल होते हैं। यहाँ पे CD4 का अल्टरनेट नेम जब हम यूज करते दैट इज T हेल्पर सेल जो आइडेंटिफिकेशन में हेल्प करते हैं। आगे दिया है T किलर तो दैट इज CD8 सेल, और सप्रेसर सेल्स दिए हैं, B सेल्स दिए हैं। HIV का टारगेट सेल जो है वो T हेल्पर है या जिसको हम CD4 सेल भी कहते हैं। क्वेश्चन 75 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिपिड मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल। अब यहाँ पे भी अगेन एक डिस्ट्रक्टर दिया गया है प्रोटीन्स का। प्रोटीन्स के बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में हम कहते हैं कि ये मोस्ट अबंडेंट है, ये अबंडेंट नेचर में है, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म में है। लेकिन यहाँ पे स्टेटमेंट में एक वर्ड दिया है लिपिड्स का कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिपिड मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल्स। तो यहाँ पे फैट्स हमारे साथ करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑयल जो है वो प्लांट का स्टोरेज प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 प्रोटीन्स प्रेजेंट इन आवर स्किन इज। यहाँ पे केराटिन और कोलेजिन 2 प्रोटीन्स दिए गए हैं। ये अलग अलग चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया है, जिसमें केराटिन हमारे एपिडर्मिस में होते हैं
और कोलाजिन जो है दे आर प्रेजेंट इन डर्मस। एक टॉपिक इम्यूनिटी में डिस्कस किया गया है कोलाजिन के बारे में, और केराटिन जो है ये हमारे साथ फाइब्रस प्रोटीन में दिया गया है। तो ये केराटिन आपको कंफ्यूज ना करे, ये आपको डिस्ट्रैक्ट ना करे, क्योंकि द करेक्ट आंसर इज केराटिन प्लस कोलाजिन बोथ। सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 77 है नंबर ऑफ न्यूक्लियर पोर्स इन एक सेल। हमारे बुक में 4 चीजें दी गई हैं, एक डिफरेंशिएटेड सेल दिया गया है, एक सेल दिया गया है, एक अनडिफरेंशिएटेड है और एक रेड ब्लड सेल दिया गया है। तो हमारे दो अगर हम इसको आइसोलेट करेंगे, डिफरेंशिएटेड का एग्जाम्पल है रेड ब्लड सेल, अनडिफरेंशिएटेड का एग्जाम्पल है एक सेल। तो इसमें क्लियर डिफरेंस है कि एक सेल दिया जाए या डिफरेंशिएट या अनडिफरेंशिएटेड दिया जाए, रेड ब्लड सेल दिया जाए या डिफरेंशिएटेड दिया जाए, इसका सेम मतलब होगा। यहाँ पे करेक्ट आंसर इज बी एंड दैट इज 30,000। क्वेश्चन 78 है विच वन इज ट्रू फॉर ए बैक्टीरियल सेल। यहाँ पे बैक्टीरियल सेल के साथ कौन सा करेक्ट है? तो ये एक क्वेश्चन है जो कॉमनली आल जब ऑप्शन होता है तो इसमें हमारे स्टूडेंट्स कभी कभार ये कर लेते हैं कि ऑप्शन ए उसको करेक्ट नजर आ जाता है और बबल शीट में वो भर देते हैं। तो यहाँ पे वही बात मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि अगर आपको ऑप्शन ए करेक्ट भी लग रहा है तो यू हैव टू गिव टाइम टू द रेस्ट ऑफ द ऑप्शंस, दैट इज ए बी सी एंड डी। यहाँ पे आप देखिए सिंगल क्रोमोसोम बैक्टीरिया में है, न्यूक्लाइड बैक्टीरियल न्यूक्लियस के बारे में है, मीजोसोम बैक्टीरियल सेल का हिस्सा है। तो द करेक्ट आंसर इज all of these. Question 79 है which of the following is considered a storage product? Again यहाँ पे आप देखिए तो स्टोरेज प्रोडक्ट के साथ कोई आगे एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया है कि ये एनिमल का स्टोरेज प्रोडक्ट है, प्लांट का स्टोरेज प्रोडक्ट है। जनरली किसको हम स्टोरेज प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं? तो यहाँ पे ग्लाइकोजन को डायरेक्ट आप नहीं करना है बल्कि आपने बी को भी देखना है, एंड दैट स्टार्च। ग्लाइकोजन एनिमल का स्टोरेज प्रोडक्ट है और बी स्टार्च जो है वो प्लांट का स्टोरेज प्रोडक्ट है। द करेक्ट आंसर इज बोथ। क्वेश्चन नंबर 80 है मच ऑफ द रिस्पिरेटरी इवेंट अकर इन। अच्छा, रिस्पिरेटरी इवेंट्स का मेजॉरिटी पोर्शन जो है मतलब रिस्पिरेशन का प्रोसेस ये कहाँ पे होता है? तो दैट अकर इन सेल। अब यहाँ पे हमारे साथ जो ऑप्शंस दिए गए क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज। आप देखिए ग्लाइकोलाइसिस एरोबिक एनारोबिक दोनों वाला साइटोप्लाज्म होता है। इसके अलावा ग्लाइकोलाइसिस के बाद लिंक्ड रिएक्शन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये सारे के सारे जो है दैट अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया। सो द राइट आंसर इज सी। तो जनरली अगर हम सेल में भी देखें माइटोकॉन्ड्रिया इसका मेजर रीजन है जहाँ पे सारे इवेंट्स होते हैं। क्वेश्चन 81 है प्लेन क्वेश्चन है, मेमोरी के ऊपर है। नंबर ऑफ स्पाइक्स पर HIV वायरस इज। एक HIV वायरस में कितने स्पाइक्स होते हैं? दैट इज 72। एक वायरस में 72 स्पाइक्स होते हैं। ग्रेट लक, थैंक यू।